Hi everybody, this is Dr. Tufail. I welcome you all in the class of research studies, research methodology. In our last class, we talked about what are different types of research like basic research, applied research, historical research, qualitative, correlational research, causal research, and we also try to understand what's the basic difference between qualitative and quantitative research. In today's class, we would talk about that how to select a topic, to select uh, a problem that is worth researching or that is researchable, and how can we make a statement of the problem, and how can we select the tools, and we can design a hypothesis. So in this class, we would try to cover some of the basic components regarding the selection of the topic, as well as so look at well this is the first step in selecting research. The problem is that we have to identify general problem area that is related to your area of expertise or particular interest to you. Now, I mentioned that this book is designed for educational research, so it talks about education. We here consider it as a literature, studies of literature. So you would select the areas of your expertise, of your interest. It may be novel, fiction, drama, poetry, essays, biography, etc. So these are some of the more the basic thing is that to select the area or topic. The next step is to narrow down the general problem area to a specific researchable problem. Now, okay, you take this novel as your area of interest, but then you have to just narrow it down that which novel you want to study. Okay, you say that I want to study Paisa to India or A Tale of Two Cities, Jem Joyce novel or Virginia Woolf to the Lighthouse, but some novel. Then what you want to see in that thing again? It's okay. You want to study novel? Great. Which novel? That novel A. Then again, it will be that what aspect you want to research in that novel. Okay, उसके अंदर आप क्या देखना चाहते हैं? So that's very much important that you have to narrow down your areas. Okay. फिर आप उसको किस theoretical perspective से देखना चाहते हैं? You want to look at from feministic perspective, post-colonial perspective, psychoanalytical perspective, Marxist perspective, और existentialist perspective या किसी और concept या theory की मदद से आप उसको देखना चाहते हैं, you go along with that. Okay. So here it mentions that what are the sources. Okay, the most meaningful problems are generally derived from theory. So yes, of course, we have theories too, which we adopt. Okay, may it be post-colonial theory, feminist theory, Marxist theory, or other type of a theories what we use in literature. So you can derive any thing from this theory in order to add something to those theories, or the models of those theories, or the that tenets or basic features of that theories. Or you want to um, analyze literary works with the help of those theories. Major sources of non-theoretical problems is the researcher's personal experience. So, well, when you will go to your personal studies or different studies of literary works, then you feel some ideas what you feel are whether they are portrayed properly or not, are your personal experiences based on your society, and later you want to see that to what extent literature is consistent with that empirical side of your society. किस हद तक आपका अदब आपकी सोसाइटी इसको सपोर्ट करता है या उसी को रिप्रेजेंट करता है या रिफ्लेक्ट करता है.
Literature is also a good source of problem. In addition to overview and summaries, or specific studies often indicate next step studies which need to be conducted. और एक बात ये चीज़ अहम है कि जब भी कोई बंदा थीसिस लिखता है एमफिल में या पीएचडी में, जब वो अपने टॉपिक को ख़त्म करता है तो उसके आगे वो एक स्टेप बताता है कि आगे क्या करना चाहिए, या वो समझता है कि आगे अब इस स्टडीज़ को अगर इस पर्सपेक्टिव से मज़ीद लिया जाए तो उसमें कुछ जो है ना नई चीज़ें ऐड हो सकती है, तो वो जो नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, उस स्टेप से भी हमें न्यू टॉपिक्स मिलते हैं। और जब रिसर्च हम करते हैं, तो वो रिसर्च के एंड पे भी वो रिकमेंडेशंस देते हैं कि और कौन-सी चीज़ें इसमें ऐड की जाएँ ताकि इसको जो है ना वो और ज़्यादा बेहतर समझा जा सके। तो थीसिस की एंड पे, डिसर्टेशंस की एंड पे, पेपर्स की एंड पे अगर वो राइटर समझते हैं कि इसके कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिन पे मज़ीद काम होना चाहिए, so they also add to that next step and which also help us to select the topic. यहाँ से भी हमें टॉपिक मिल सकता है. It is generally not a good idea to simply replicate a study as it was originally conducted. There is much to be learned from developing and executing your own study. अगर आप एक ऐसी स्टडी करें जो ऑलरेडी कहीं पर हो गई है और आप उसी को दोबारा करें, तो उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए लाज़मी है कि हम उस आइडियाज़ पे काम करें, जो आइडियाज़ पे काम नहीं हुआ या जहाँ पे गैप है, रिसर्च गैप है और वहाँ अभी तक उसको किसी ने उसको टच नहीं किया, तो यू शुड गो विद दैट थिंग एंड यू सेलेक्ट इट एज़ ए so, look, what are the basic characteristics? Okay, when you talk about basic characteristics of a research problem, is that is a researchable. That is can be investigated through the collections and analysis of data. देखिए कोई भी टॉपिक तब तक टॉपिक नहीं बन सकता जब तक वो रिसर्चेबल ना हो, जिसके बारे में हम डाटा कलेक्ट करके उसमें एनालाइज ना कर सके, we would say that this is not a researchable, so we will not consider it as a topic for a study. Good problem has a theoretical or practical significance. जो भी आप काम करें उसका theoretical या practical कोई मकसद हो. Its solutions should contribute in some way to improvement of the education process. आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे जिससे हमारे लिटरेचर से सोसाइटी को, यहाँ पे एजुकेशन की बात आ रही है तो हम लिटरेचर सोसाइटी को चेंज की बात करें, उसमें कुछ चीज़ें एडिशन करें. A good problem must be a good problem for you. It must be a problem that you can adequately investigate, given your current level of research skills, number two, available resources and time and other restrictions. फिर ये बात भी है कि आप जो टॉपिक करें वो टॉपिक हो जो आपके लिए टॉपिक हो और एक रियल प्रॉब्लम हो. नंबर एक बात, आपकी जो करंट रिसर्च लेवल है वो उस स्किल, उसके जो रिसर्च स्किल्स हैं वो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके और उसको जो है ना एनालाइज करके साबित करने के लिए काफ़ी हों. यू शुड हैव सच स्किल्स. फिर उसके लिए आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज. कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स ऐसा टॉपिक चुनकर बैठ जाते हैं कि जिनके टॉपिक तो अच्छा होता है लेकिन उनके पास उसके डाटा नहीं है, या डाटा लेने के लिए उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं है, तो फिर क्या होगा, आप वो स्टडी नहीं कर पाएंगे. मिसाल के तौर पे आप अमेरिकन लोगों पे कोई काम करना चाह रहे हैं, अब आपके पास ये मुमकिन नहीं कि आप अमेरिका जाएं और लोगों से डाटा कलेक्ट करें, तो दिस कुड बी द रीजन. या आप ऐसा कोई काम करें जिसमें आप आपको डेटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा क्योंकि आपका टॉपिक कुछ इस तरह की सिचुएशन है, सेंसिटिविटी है कि आप जो है वो अ, उसको नहीं जो है ना वो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं. आप ये जानना चाहते हैं कि कोका कोला वाले किस तरीके से जो है ना वो अपने लोगों से, अपने एम्प्लॉयर्स की को कम जो है ना वो जो है ना वो इंसेंटिव देकर और उनके पैसों को उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, तो यकीनन कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट इसका डेटा नहीं देगी, जो कि बहुत मुश्किल होगा कि यू कैन हैव अ फर्स्ट हैंड रिसोर्सेज. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपका टॉपिक वो हो जिस पे आप काम कर सकते हो, फिर आपके पास रिसोर्सेज हों, इस तरह कि उनका टाइम फ्रेमवर्क हो गया. देखिए कुछ स्टडीज ऐसी होती हैं जिनके अपने अपने टाइम फ्रेमवर्क प्रोवाइड होता है जिसके पहले आप नहीं कर सकते. अगर ये मैं स्टडी करना चाहता हूँ कि जी जो शुगर के मरीज होते हैं उनके साथ जो है ना वो 10 या 20 साल के बाद उन पे क्या इम्पैक्ट आते हैं, तो ये स्टडी के लिए मुझे 20 साल वेट करना पड़ेगा कोई रिजल्ट ज़ाहिर करने के लिए. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज़ योर टाइम लिमिट्स, कितने टाइम में आपने काम करना है, तो यू हैव टू सिलेक्ट योर टॉपिक अकॉर्डिंगली. अब जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो आपका प्रॉब्लम है जिसको आप रिसर्च करना चाहते हैं आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कहलाती है. इसको हम पहले हमारे चैप्टर्स में रखते हैं जो है ना वो. A well written statement of a problem generally indicates the variables of interest to the researcher. कौन से वेरिएबल्स उसमें जो है ना वो इन्वॉल्व हो रहे हैं.
मिसाल के तौर पे आप एजुकेशन पे काम करें जिसमें बुक्स को देखेंगे, टीचर्स को देखेंगे, मेथोडोलॉजी को देखेंगे, टाइम टेबल को देखेंगे, रेगुलरिटी को देखेंगे, अटेंडेंस को देखेंगे, ये सब चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखेंगे, तो कुछ कौन से वेरिएबल्स को आप इन्वॉल्व करें, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, और ये आपको तय क्लियर करना होगा कि और जो ना आप किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करेंगे, आइडियली द टाइप एंड सब्जेक्ट इन्वॉल्व और उसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, कि आप टीचर्स को देखना चाहते हैं कि वो कैसे पढ़ा रहा है, आप स्टूडेंट्स को देखना चाह रहे हैं कि वो कैसे पढ़ रहा है, आप किताब को देख रहे हैं कि वो किताब किस तरह की है, तो आपने ये बताना है कि आपकी स्टडी किस वेरिएबल को कंट्रोल करेगी, किसके बारे में हमें बताएगी। A well-written problem statement also defines all relevant variables, either directly or operationally. Operational definitions define concepts in terms of operations or process. दूसरी बात, ये हमें स्टेटमेंट में बताना होता है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में हमारे जो वेरिएबल्स क्या हैं, हमारी वो वेरिएबल्स ऑपरेशनल हैं, उन पे हम काम कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या होगी। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं आइडेंटिटी को चेक करूंगा तो आइडेंटिटी से क्या मुराद है। अगर आप ये बता रहे हैं कि पीयर असेसमेंट को मैं चेक करूंगा तो पीयर असेसमेंट कहता किसे हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आप पोर्टफोलियो असेसमेंट पे काम करें तो फिर पोर्टफोलियो असेसमेंट को डिफाइन करें। उसे क्लियर कर जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में हमें ये चीज़ें बतानी होती है कि हमारे ऑपरेशनल डेफिनेशंस क्या हैं चीज़ों की, हम क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, और वो हम किस तरीके से देखेंगे। Since the problem statement gives direction to the rest of the plan or report, it should be stated as soon as possible. Okay, जाहिर बात है क्योंकि जितनी भी आपकी रिसर्च होती है उसी को डायरेक्शन जो है ना स्टेटमेंट से मिलती है, प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट से। तो आप इसको जल्दी रखें, अवाली चैप्टर्स की शुरुआत में इसको जो है ना रखें, इंट्रोडक्शन के बाद या बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज के बाद, ताकि हमें पता चले कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है जिसको आप जानना चाह रहे हो। सो जितनी वो क्लियर होगी वहीं से हमें पता चलेगा कि आपकी स्टडी क्या है और आप क्या करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम शुड बी accompanied by the presentation of the background of the problem, including the justification for the study in terms of the significance of the problem. So आप जो है ना वो उस प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को जो है ना वो प्रेजेंटेशंस ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम के लिए भी देखें कि वो जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की बुनियाद क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस बैकग्राउंड को समझ कर को भी एक्सप्लेन करें, ताकि हमें पता चले कि ये प्रॉब्लम कहाँ से पैदा हुई है, किस तरीके से कनेक्टेड है, और उससे आप क्या जानना चाहते हो। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि सिंधी समाज के अंदर जो है ना औरत को एक मखसूस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो लिटरेचर को आप देखना चाह रहे हैं कि जो आया लिटरेचर भी औरत को उसी तरीके से डील कर रहा है कि उसी को कन्फाइंड और कंट्रोल इन्वायरमेंट पे रिप्रेजेंट कर रहा है, या उनको कोई आज़ादी दे रहा है कैरेक्टर्स में या कुछ चीज़ें। तो आप वो बैकग्राउंड बताएंगे और फिर अपनी स्टेटमेंट को उस बैकग्राउंड के साथ कनेक्ट करके आप बताएंगे कि उसका मकसद क्या है और ये इस प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है। अब जब ये चीज़ हो जाती है तो आपको पता है कि आप रिसर्च पेपर लिख रहे हो या रिसर्च थीसिस लिख रहे हो। दूसरा चैप्टर हमेशा रिव्यू ऑफ लिटरेचर का होता है। अब रिलेटेड लिटरेचर से क्या मुराद होती है? इससे मुराद ये होती है कि जिस टॉपिक पे प्रॉब्लम पे आप काम करें, सिर्फ इस पे पहले क्या काम हुआ है, तो वो काम बताएं, और आपका काम उस काम से कैसे डिफरेंट एक तो ये चीज़ होगी कि जी इस बंदे ने ये कहा, इसने ये कहा, इसने पहले ने ए कहा, दूसरे ने बी कहा, तीसरे ने सी कहा, चौथे ने डी कहा, लेकिन आज तक किसी भी बंदे ने एफ की बात नहीं की है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है जो मिस होती है, और मैं अपनी स्टडी में उस एफ को देखूंगा कि किस तरीके से होगा। तो पहली बात ये चीज़ होती है कि आपका जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है वो सिस्टमेटिकली आइडेंटिफिकेशन, लोकेशंस एंड एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम। जो आपका एक्चुअल प्रॉब्लम होता है उसी से रिलेटेड जो डेटा है या बाकी स्टडीज है आप उसको जो है ना डिस्कस करते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है, हमें पता होता है कि ये एरिया फला बंदों ने काम किया था, लेकिन ये एरिया रहे थे जिस पे ये स्टडीज होने जा रही है। मेजर पर्पस ऑफ द रिव्यूइंग द लिटरेचर इज टू डिटरमिन व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन दैट रिलेट्स टू योर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम पे पहले क्या काम हो चुका है, एक तो आपको ये पता चलता है। एंड अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लिटरेचर रिव्यूज दैट it points out such strategies and specific procedures and measuring instruments that have not been found to be productive in investigating your problem. फिर आप ये भी बताते हैं कि इस मौजू के हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से कौन सी चीज़ें पहले की गई मगर वो कामयाब नहीं हुई या वो सही साबित नहीं हुई और उनका उनसे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, और किस तरीके से ये आपके रिसर्च जो है ना, आपका जो डिवाइस है या आपके जो टूल है वो उनसे डिफरेंट है, और किस तरीके से हमें जो है ना ये फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो आप ये भी हमें बता देते हैं कि ये कैसे दूसरों से डिफरेंट है।
फिर बात है कि being a familiar with the previous research also facilitates interpretations of the results of this study. क्योंकि आप पहले उस रिसर्च से ऑलरेडी जानते हैं, तो आप उनकी नताइज को भी हमें शेयर करते हैं, फिर आप ये भी दिखाते हैं कि आपके नताइज उनके नताइज से कैसे मुख्तलिफ हैं और कैसे आपके नताइज जो है ना उसको ऐड करेंगे या जो कुछ similar or well organized review is definitely to be preferred to a review containing many studies that are more or less related to the problem. अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर से मुराद ये नहीं कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जितनी हज़ार स्टडीज आप उसको कोट करें, उससे बेहतर है जो उसमें सिलेक्टेड स्टडीज हैं जो ज़्यादा कनेक्टेड हैं आपके टॉपिक के साथ, आप उनको करें और उनके साथ अपना लिंक जोड़कर आप अपनी बात को आगे ले जाएं. Heavily researched areas usually provide enough reference directly related to the specific problems to eliminate the need of the relying on the less related studies. तो जो एरियाज जो हैं अपना, अगर आपकी जिस टॉपिक पे आप काम करें उस टॉपिक पे दुनिया में बहुत काम हुआ है, तो फिर आप ऐसा कोशिश करें कि उसमें आपके जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या रिच कंटेंट स्टडीज़ हैं उनको आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर में कंसिडर करें, ना कि उनको जो लेस रिलायबल है या लेस मकसद वो इतनी क्रिटिकल नहीं है या उनमें इतनी इन डेप्थ नहीं है. उससे बेहतर है कि जब आपके पास ऐसा टॉपिक है जिस पे ज़्यादा काम हुआ है, तो उसमें आप जो सीरियस और रिगरस स्टडीज़ हैं उनको जो है ना बुनियाद बनाकर उन पे अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर डेवलप करें, ना कि सेकेंडरी चीज़ों के ऊपर. So, new or little research problems areas usually require review of any study related in some meaningful way to the problem in order to develop a logical framework for the study. कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिस पे बहुत कम काम हुआ था या हो ही नहीं होता, तो उसको समझने के लिए उससे जो क्लोज रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं हम उनको स्टडी करते हैं और उनमें से हम अपने टॉपिक को या अपनी जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं. तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कॉमन मिसकंसेप्शंस among beginning researchers is the idea that the worth of their problem is a function of the amount of literature available on the topic. ये misconception है कि beginning research आप ऐसे आइडिया पे करें worth of their problem is a function of the amount of literature available, कि उस पे कितना आपके पास literature पहले से available है ताकि आप काम कर सकें. ये नहीं है, आप अपने टॉपिक पे काम करें और उस पर प्रिपरेशन करें और उसी से रिलेटेड आप अपने आइडियाज़ को कलेक्ट करें और वो आइडियाज़ आपको लाइब्रेरी से, बुक से, जर्नल से, रिसर्च जर्नल से, थीसिस से, डिसर्टेशन से और जो ना इन तरह के एरिया से आपको ये चीज़ें मिल सकती है. अब चूँकि ये जो अपना है अपना एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये उसके हवाले से बात कर रहा है. आप हमारा जो काम ज़्यादा लिटरेचर के साथ हो जाए तो हमने ये देखना है कि जो रिसर्च जर्नल्स हैं, आम नहीं, रिसर्च जर्नल्स आप गूगल स्कॉलर पे लिखेंगे, यू विल फाइंड मेनी रिसर्च जर्नल्स. उन रिसर्च जर्नल्स में आप जाएंगे तो लिटरेचर के जो रिसर्च जर्नल हैं उनमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो जो इनके जिनमें आपको उनके टॉपिक्स मिल सकते हैं, वहाँ पे किस तरीके से काम हो रहा है. अच्छा, एक बात ज़हन में रखें कि आप बहुत सी चीज़ों को रेप्लिका तो नहीं करते लेकिन कंटेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने रोनाल्ड बार्थ के 5 कोड ऑफ नरेशंस को जो है ना डिस्कस किया है ए स्टोरी में. अब आप वही चीज़ पहले समझ लें तो आप उसी को आप किसी और दूसरी बी स्टोरी में उन्हीं को अप्लाई करके आप उन चीज़ों का जो है ना वो जान सकते हैं. तो एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो किसी एक नावल पे यूज़ हुआ है, वही जो है ना वो थ्योरी आप किसी दूसरे नावल पे अप्लाई कर सकते हैं और आप ये जान सकते हैं कि वो किस तरीके से. तो ये चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अब जो एजुकेशन के अंदर हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया होती है, इंडेक्सेस होती हैं जहाँ पे आपके हर साल ये पब्लिश होती हैं. रीडर्स गाइड और पीरियडिकल लिटरेचर्स होते हैं, इसमें डिसर्टेशंस, एब्स्ट्रैक्ट्स या इंटरनेशनल थीसिस वगैरह जो होती हैं इनको जो ले लें, या साइकोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स बुक्स होते हैं या एजुकेशनल रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सेंटर्स हैं या RIA या CIJ, ये वो सब जो है ना वो बुक्स हैं या रिव्यू ले हैं जहाँ पे हमें, या कंप्यूटर सर्च हैं जहाँ से एजुकेशन से रिलेटेड जो हमारे टॉपिक हैं वो हमें मिलते हैं. ये जितने भी आपको बता रहा है ये सब वो बता रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड अगर आपने टॉपिक ढूंढे हैं तो आपको वो कहाँ पे मिल सकते हैं और ये उनके सोर्सेज हैं कि जहाँ पे जो ना, और यहाँ जो एब्स्ट्रैक्टिंग कंपनीज हैं वो भी इन मुख्तलिफ टॉपिक्स को अपने आइडियाज़ को उसमें ऐड करती है. आप इन चीज़ों को जो है ना वहाँ से ले सकते हैं. तो मेन बात ये है कि आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करें उसमें आपको ये देखना है कि आपका टॉपिक आपकी स्टडी से रिलेटेड हो. अब
जो हमारा यहाँ पे मकसद है, तो चूंकि लिटरेचर है, सो वी हैव टू सी दैट योर टॉपिक is close to literature, and then you have to see that what is the statement of problem, what you want to do, और आप करना क्या चाहते हैं, और उससे और फिर उसके लिए आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है, या आपने क्या हाइपोथेसिस बनाई है, फिर आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है, कौन सी थ्योरी यूज कर रहे हैं, और किस तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं, लाइक दिस थिंग। अब हम जो मेन चीज़ आती है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ जो है ना वो प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो वहाँ पे हाइपोथेसिस की बात होती है, जो कि एक एजुकेटेड गेस है जिसको हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर ए सर्टेन बिहेवियर, फिनोमेना और इवेंट दैट हैव अकर्ड और विल अकर। एक एक टेंटेटिव, एक समझ में आने वाला एक बिहेवियर है या फिनोमेना जो आप समझते हैं जिसकी वजह से कोई चीज हुई है या होगी। द रिसर्चर डज नॉट set out to prove his or her hypothesis, but rather collects data that either support the hypothesis or don't support it. अच्छा, रिसर्चर का मतलब ये नहीं होता कि जो उसने हाइपोथेसिस रहा दी कि अगर जी दिन में अंग्रेजी का रिजल्ट इसलिए बुरा आता है कि टीचर नहीं पढ़ाता है, ये उसका हाइपोथेसिस है। लेकिन वो जब जाता है फील्ड में, लोगों से पूछता है, स्टूडेंट से पूछता है, स्कूल विजिट करता है, तो उसे पता चलता है कि ये असल नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर नहीं पढ़ाते, लेकिन असल में है वहाँ पे अंग्रेजी के टीचर हैं ही नहीं। पूरे उन 100 स्कूल्स के अंदर सिर्फ 4 स्कूल्स में टीचर हैं, बाकी हैं ही नहीं। तो जब टीचर ही अवेलेबल नहीं है तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? तो हाइपोथेसिस ये था कि रिजल्ट इसलिए खराब आता है कि टीचर पढ़ाते नहीं है, लेकिन पता चला कि टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाने का तो इश्यू नहीं है, वहाँ पे टीचर है ही नहीं। सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? ओके, आपका हाइपोथेसिस ये कि टीचर को जो है ना वो पढ़ाना नहीं आता, जो है ना वो, लेकिन जब आपने रिसर्च की तो आपने पता लगा कि टीचर्स को पढ़ाना आता है, लेकिन वो जो पढ़ाने का मेथड है वो ओल्ड है, इसके लिए वो बच्चे क्रिएटिव या क्रिएटिव या क्रिटिकल नहीं बन पा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा। सो दैट कुड बी द रीजंस। क्या है रनिंग आपकी ऑपरेशनल हाइपोथेसिस, क्या है, आप किस तरह उन चीजों को देखना चाह रहे हैं, दैट्स व्हाट इज योर हाइपोथेसिस। ओके, द रिसर्चर डजंट सेट आउट, तो जरूरी नहीं कि वो उसको प्रूव करे। द हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड फॉलोइंग द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर एंड द प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी स्टडी। आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, जो आपका लिटरेचर है उसको रिव्यू करके आप हाइपोथेसिस बनाते हैं कि इसकी वजह ये है। द हाइपोथेसिस लॉजिकली फॉलोज द रिव्यू एंड इट इज बेस्ड ऑन द implications of the previous research, और जो पहले रिसर्च हुई हैं उन्हीं के नताज के ऊपर आप एक हाइपोथेसिस को बनाते हैं कि जी इन चीज़ों की रोशनी में ज़ाहिर हो रहा है कि ये खास वजह होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर डेटा अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो आपकी हाइपोथेसिस साबित हो गई, अगर आपका वो नहीं कर रहा तो आपकी हाइपोथेसिस वो जो है रिजेक्ट हो गई। तो इस तरीके से हम जो है ना वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपने डाटा, लेकिन लिटरेचर के अंदर हाइपोथेसिस कम यूज होती हैं। लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर ज़्यादातर पे रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, आप कोई भी सवाल उठाते हैं और उसी सवाल का जवाब आप डेटा में देखने जो है ना वो देने की कोशिश करते हैं। तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस दैट इट इज कंसिस्टेंट विद प्रीवियस रिसर्च। पहली बात है कि जो प्रीवियस रिसर्च है उसके साथ उसका कोई लिंक हो, और इट इज टेंटेटिव, कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव, रीजनेबल है, होने जैसी है। फॉर द occurrences of certain behaviors or phenomena or events, और अपन को समझ आती है कि इसमें ये चीज़ का शुमार हो सकता है कि ये रिजल्ट खराब है, टीचर नहीं है, बुक्स नहीं है, ये नहीं है, पढ़ाई नहीं है, तो ये चीज़ें समझ में आने वाली हाइपोथेसिस होती है। A good hypothesis states as clearly and concisely as possible the expected relationship। ओके, वो क्लियरली बता दिए कि आपकी हाइपोथेसिस क्या कह रही है, उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनका क्या ताल्लुक है एक दूसरे के साथ, उनका रिलेशनशिप क्या है, और हम क्या जानना चाहते हैं, किस चीज़ को रोकना है, कौन सी चीज़ मैयर करनी है, ये सब चीज़ें जो है ना एक अच्छी हाइपोथेसिस में क्लियर होती है। वेल स्टेटेड एंड डिफाइंड हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल, और वो जो इसको हम टेस्ट भी कर सके। अब जब हम हाइपोथेसिस में जाते हैं तो वो हाइपोथेसिस एक तो वो होती है जो जनरलाइज्ड होती है। अब जो इंडक्टिव हाइपोथेसिस इज ए जनरलाइजेशन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। आपने जो है वो एक चीज को देख कर फिर आपने एक जो है ना वो हाइपोथेसिस बनाई कि आपने देखा कि ये चीज। डिडक्टिव हाइपोथेसिस डेराइव्ड फ्रॉम ए थियरी। थियरी में ऑलरेडी चीज एक चीज प्रूव है और आपने उसको बताकर कंट्रीब्यूट टू द साइंस ऑफ एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग एविडेंस दैट सपोर्ट्स और एक्सपांड्स और कंट्राडिक्ट्स ए गिवन थियरी। तो वहाँ पे हम डेटा कलेक्ट करके फिर जाते हैं थियरीज के अंदर, और जो ना और अपना जो डिडक्टिव है उसी में हम थियरी को उठाकर और फिर हम डेटा कलेक्ट करके ये देखते हैं कि आया उससे वो मैच करती है या नहीं करती, तो फिर वो थियरी उससे कंसिस्टेंट है या कंट्राडिक्ट करती है, हम उसको मिलकर जो है ना वो देखते हैं। Research hypothesis states the expected relationship or difference between the two variables. In other words,
what relationship the researcher expects to verify through the collections and analysis of data. उसमें हमें ये देखना होता है कि जो वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है और जो हमारा डेटा है वो उनमें जो है ना वो क्या, तो हमारे पास एक नॉन डायरेक्शनल थीसिस होती है, हाइपोथेसिस होती है, indicates that the relationship are difference exist. Directional hypothesis indicates the nature of the relationship are different. मिसाल के तौर पे नॉन डायरेक्शन में ये कहूँ कि अगर हम 9th क्लास के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी एक्टिविटी बेस्ड मेथड या लेक्चर बेस्ड मेथड पे पढ़ाएंगे तो नतीजे में फ़र्क आएगा। ठीक है, आप ये तो बता रहे हैं कि 9th क्लास की बायोलॉजी को अगर जो है ना एक्टिविटी बेस्ड मेथड या लेक्चर बेस्ड मेथड पे पढ़ाएंगे तो फ़र्क आएगा, लेकिन ये नहीं बता रहे कि कौन सा आपकी नज़र में बेहतर है, कौन सा आपकी नज़र में कम है। अब हम 2 तरीके करेंगे, दोनों को पढ़ाएँगे, उसके बाद एनालाइज़ करेंगे कि कौन सा, दिस कॉल्ड नॉन डायरेक्शनल। लेकिन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस ये होती है कि अगर क्लास 9th की बायोलॉजी लेक्चर एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे पढ़ाई जाए तो लेक्चर बेस्ड मेथड से रिजल्ट अच्छा आता है। दिस इज डायरेक्शन, क्योंकि इसमें आप सिमत तय करें कि जो एक्टिविटी बेस्ड मेथड है वो अच्छा है और वो लेक्चर मेथड अच्छा नहीं है, जिसमें आपके एक ही डायरेक्शन है जो क्लियरली आप उसको चेक करना चाहते हैं। दैट्स कॉल्ड इज अ डायरेक्शनल research. Okay, so then directional hypothesis indicates the nature of the relationship that does exist. Okay, a null hypothesis states that there will be no relationship or difference between variables. So that any relationship found will be a chance relationship, not a. तो नल हाइपोथेसिस वो होती है जो ये बताती है कि ये जो आप रिलेशनशिप कह रहे हैं इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, कि अगर एक बंदा शुगर का मरीज है और वो जो है ना वो कोई चीज़ मिसाल के तौर पे वो अगर खा ले, लेडी फिंगर खा ले या ओकरा खा ले तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है वो आपकी एक हाइपोथेसिस है। जो नल हाइपोथेसिस है जिससे साबित हो गया कि इसका आपस में जो है ना वो एक चीज़ के खाने का उसकी शुगर पे डायबिटीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हम समझते थे कैसे होता है, बट दिस नल वाइड। सो ये हाइपोथेसिस जो है ना वो नल साबित होती है। जिस तरह देखिए हमारे ज़माने में पहले बंदों को जब बुखार होता था वो तो कहते थे इसको पानी के नज़दीक ना लाओ, क्योंकि पानी लगेगा जिस्म को, जिस्म बुखार में गर्म है, उसको पानी लगेगा तो ये जो है ना वो जिस तरह गाड़ी वगैरह गर्म होती है आप, तो मकसद वो समझते थे कि उसको पानी नहीं लगाना चाहिए जिस्म को। लेकिन बाद में फिर लोगों ने, साइंस ने बताया कि नहीं, जब बीमार हो उसको ज़्यादा पानी लगाना चाहिए, उसको हाथ पाँव धुलाने चाहिए ताकि उसका बुखार वगैरह ख़त्म हो जाए। तो अब देखें ये जो हाइपोथेसिस थी कि ये बुखार वाले को पानी टच ना करे जिस्म को, ये चीज़ जो है ना वो साबित हो गई। तो इस तरीके से जो एक नॉर्मल हाइपोथेसिस को जब हम स्टेट करते हैं तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि एसेस हु गेट्स एक्स डू बेटर ऑन वाई। अब ऐसे से मतलब तो कोई भी स्टूडेंट्स अगर जो है ना वो स्टूडेंट्स को अगर बायो एक्टिविटी बेस्ड मेथड से मिलता है तो लेक्चर मेथड से वो अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे, और जो स्टूडेंट्स जिनको बायो एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे नहीं मिलता उनका वो जो है ना वो लेक्चर मेथड से अच्छा नहीं करते, जो है ना वो। तो ये चीज़ें जो है ना वो बता रही हैं कि अब ये ऐसे से आपका कोई भी जो है ना सब्जेक्ट है जिसकी आप बात करें, और एक्स जो है ना एक वो ट्रीटमेंट है कि मखसूस चीज़ जो मिलती है जो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। उसके बाद वाई जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर 9th क्लास के स्टूडेंट्स को बायोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे पढ़ाया जाए तो उनका रिजल्ट अच्छा आता है। अब आपका वाई रिजल्ट है एक से एक्टिविटी बेस्ड मेथड है और एस एस स्टूडेंट्स ऑफ 9th है। लेकिन अगर 9th को आप जो है ना वो एक्टिविटी बेस्ड मेथड से नहीं पढ़ाते तो फिर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। So this is how you can see that these educated thesis hypotheses are connected. Okay, in order to test a hypothesis, the researcher determine the sample measuring instruments, designs, and procedures that will enable him or her to collect our necessary data. Collected data are then analyzed in a manner that permits the researchers to determine the validity of hypothesis. It is just as important to know that variables are not related as it is to know what variables are related. तो हम ये देखते हैं कि फिर हम उनको बैठकर हाइपोथेसिस को, रिसर्चर्स के जो है ना वो रूल को, हमारे सैंपल क्या होगा, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होंगे, हमारी कौन सी रिसर्च डिज़ाइन होगी, उसको हमने किस तरीके से सिक्योर करना है, ये सब चीज़ें जो है ना वो हम हाइपोथेसिस के बाद उन चीज़ों को मेथोडोलॉजी में एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमने क्या एनालाइज करना है, किस तरीके से एनालाइज करना है और उससे हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट हमने वो कैसे हासिल करना है। So that's how what it will determine the validity of the hypothesis. It is just
as important to know what variables are not related. इसमें ये भी बात है, ये नहीं कि सिर्फ आप ये जानना चाहते हो कि ए बढ़ने से बी पे पॉजिटिव असर पड़ता है, लेकिन आप ये भी बता सकते हैं कि अगर दूसरी चीज़ बढ़ती है तो भी उस पे कोई क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता, तो आपने ये बता देना होगा कि ये चीज़ मुमकिन है, ये चीज़ इस पे नहीं है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो इस तरीके से जो है आप हाइपोथेसिस की मदद से आप वो देखते हैं कि वो चीज़ रिसर्चेबल है या नहीं है, अगर है तो किस तरीके से आप उसको जान सकते हैं। तो इस सेकंड क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि स्टेटमेंट हमें टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, हमें अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को कैसे लिखना चाहिए, और ये हमें अपना टॉपिक कहाँ से मिल सकता है, रिसर्च स्टडीज से, डिसर्टेशन से, थीसिस से, और जो है ना आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से, पर्सनल स्टडीज से ये टॉपिक आपको मिल सकते हैं। फिर उन्हीं टॉपिक्स को जो है ना जब आप जाते हैं तो उनको जब देखते हैं तो उनकी हाइपोथेसिस किस तरीके से आपने बनानी होती है। तो ये तरीक़ेकार होता है। हाइपोथेसिस एक एजुकेटेड गैस होती है जिसमें आप समझ लें कि कौन से वेरिएबल किस पे किस तरीके से असरअंदाज हो सकते हैं, और ये डायरेक्शनल भी हो सकती है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकती है, नल भी हाइपोथेसिस हो सकती है। और अगर आप अपनी हाइपोथेसिस को प्रॉपर्ली स्टेट करके और उसी पे काम करते हैं तो उससे एक एजुकेटेड सॉल्यूशन सामने आती है जो हमारी आगे चल के रहनुमाई करती है और हमें गाइड कर देती है। So thank you very much till that. Okay, we will continue the same topic in not same topic, but in the next class we will talk about that what is a research article and how to write a research article. जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें मैंने उन चीज़ों को डिस्कस किया था, लेकिन कुछ उसमें रह गए थे जो क्लास नहीं अटेंड कर पाए, तो मैं वो उस दिन का वो टॉपिक जो है ना उस पर एक वीडियो बनाकर मैं आपको सेंड करूँगा. दैट विल हेल्प यू to cover and to work on your personal topic or the assignment what you have started to work. It will be complete a research oriented assignment, and you will get the same treatment in accordance with the plagiarism policy, etc. So thank you very much. Till the next class, I would bid you goodbye. Take good care of yours. Thank you very much.